Hello everyone. In this video, we are going to learn about the basic data types in C program. Before starting about the types of the data, I will go through a very important topic, that is constants. In C program, constants have a very special role. It sharpens your knowledge, it sharpens your skills. It drives you into the world of numbers. So, what is constant? Constant is that term which can never be changed. So, constant वो चीज़ें होंगी अपने C प्रोग्राम में जो आप इसको थ्रू आउट द प्रोग्राम चेंज नहीं कर पाएंगे. आप कर ही नहीं सकते. अगर आप कर देंगे तो एरर आ जाएगा. अब कैसे एरर आएगा वो हम VS कोड में जाके देखेंगे एक प्रोग्राम के थ्रू. डेफिनेशन में आपको ऐसे समझाऊंगी. ठीक है. तो कांस्टेंट दो तरह की होंगी, इंटीजर टाइप, फ्लोटिंग टाइप. अच्छा, इंटीजर टाइप और फ्लोटिंग टाइप एक न्यूमेरिक टाइप के अंदर आती हैं और दूसरी टाइप हमारी कैरेक्टर टाइप है. कैरेक्टर टाइप के अंदर भी दो अलग कांस्टेंट है. एक है हमारा सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट, एक है स्ट्रिंग कांस्टेंट. अभी आपको नहीं इतना पता चल रहा होगा, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगी. ठीक है. तो न्यूमेरिक कांस्टेंट में क्या आता है, इसमें आएगी आपकी पहली इंटीजर टाइप, सेकंड आएगा, ओके वन सेकेंड, फ्लोट टाइप. अब फ्लोट और इंटीजर क्या होगा? इंटीजर by the name you can say it, integer is nothing but your numbers which are starting from negative positive numbers, these are integers. So integers are specifically those number which can be represented on the number line, as we have read earlier also in our previous classes. And what is float type? Float type means the decimal part, the decimal integers. I'm not saying the decimal type of integer, I'm saying decimal integers in which there is a decimal in it. Let's say for example 2.5, 2.4. It is a floating type constant in which you have two parts. First one is the decimal part and second is fractional part. Here 2 is your decimal part and 4 is your fractional part. So this is the floating type numeric constant. Okay. So an integer means 1, 2, 3. These are separated by commas actually. 1, 2, 3. Because if it is a one integer type, you cannot put space in it. Let's say if I write here in 1, 2, 3 like this. Here is a one space here. Space is created here. You cannot leave a space in the integer type. It is invalid. So there is a rule. While writing integer, you cannot provide a space. Okay. So, and in floating point also, they cannot be 2 point. They cannot be two decimal part. Okay. It is invalid. This type of floating type is invalid. So you cannot do so. So our next type was character. Character type. Character type is also divided into two parts. First is single character. Okay. Single character. Another one is string character. Okay. So what is single character? Single character means a type of or a notation which is enclosed in single inverted commas. For example, I write here 2. It is a character. See, it's not integer type. Mark my word. It is not equivalent to 2. This is not equivalent to 2. No, this is not equal. These are not equal. Why? Because this 2 is your character and this
The 2 which is not included in inverted comma is not a character. जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला 2 है वो एक कैरेक्टर है, कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है. इसकी पर्टिकुलर वैल्यू होगी एक कंप्यूटर के अंदर, ठीक है, इसकी एक अलग से वैल्यू होगी. और ये आपका सिंपल इंटीजर है, इसकी वैल्यू 2 ही है, लेकिन इसकी एक अलग से वैल्यू होती है जो कि स्टोर होती है आपकी एस्काई फॉर्म में. ठीक है, एस्काई फॉर्म क्या होगा वो मैं आपको एक प्रोग्राम दूंगी, एस्काई प्रिंटिंग का एक एक्सरसाइज होगा, मैं आपको तब बताऊंगी कि एस्काई किसे कहते हैं. एक बहुत वो भी इंटरेस्टिंग टॉपिक है. ठीक है, तो स्ट्रिंग ये आपका सिंगल स्ट्रिंग हो गया. इसको सिर्फ ऐसे ही नहीं रिप्रेजेंट करते, इसको एक आप कुछ भी लिख सकते हो. इसके लिए आप ये भी एक @ भी आपका स्ट्रिंग सिंगल कैरेक्टर है, कुछ भी एक हैश भी लिख सकते हैं आप. तो ये सारे आपके सिंगल कैरेक्टर के एग्जांपल्स हो गए. ठीक है, नेक्स्ट इज योर स्ट्रिंग कैरेक्टर. व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रिंग कैरेक्टर? स्ट्रिंग मीन्स सीक्वेंस ऑफ any number or any digits which is enclosed in double inverted commas. Let's say I write here language. Okay, don't go on my writing in spellings error. Please try to understand the topic. Okay, string character. This is the string character in which your sequence of digits are written enclosed in double inverted commas. Okay, so here, okay, one more interesting thing I would like to tell you, that this is not equal to this. These are not equal. This is different type and this is again a different type. Why? Because this is single character, this is your string character type and this is your single character type. So what is the difference between these two? Okay, I'll tell you. When compiler reads this thing, when compiler will read it, it will compile it in such a way that the length of that string is gonna be one more than the actual length of the string. Okay, सिंपल भाषा में क्या करेगा कंपाइलर, जब वो सिंगल कैरेक्टर को रीड करेगा, सॉरी स्ट्रिंग कैरेक्टर को रीड करेगा, तो क्या करेगा कि एक यहाँ पे अपनी तरफ से एक नल कैरेक्टर लगा देगा अपनी तरफ से, और लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कितनी हो जाएगी, अभी कितनी थी 1 2 3 4 5 6 7 8, अब लेंथ हो जाएगी 9. इसका मतलब क्या होगा, इस नल वैल्यू का मतलब होगा कि इसने इसको एंड कर दिया, इसके बाद कोई डिजिट नहीं है. ठीक है, ओके, तो ये हुआ सिंगल कैरेक्टर और स्ट्रिंग कैरेक्टर का फर्क, एक दूसरा डिफरेंस. ओके, सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज डेफिनेटली data types in C, in which we are going to study about the variables. Okay, जो कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में वेरिएबल्स के बारे में बताऊंगी. ओके, तो डेटा टाइप्स इन सी के अंदर 3 टाइप्स की क्लासिफिकेशन हो चुकी है डेटा टाइप्स की. फर्स्ट वन इज प्रिमिटिव, सेकेंड वन इज डिराइव्ड, थर्ड वन इज यूजर डिफाइंड. प्रिमिटिव के अंदर क्या आता है आपका, इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट और वॉइड. मैंने आपको इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट के बारे में मैंने आपको बता दिया. अब लेट्स से दोबारा बताती हूँ. इंटीजर, सिंपल इंटीजर्स स्टार्टिंग फ्रॉम -infinity to positive infinity, which can be represented on the number line. For example 1 2 3 4 0, these types of digits. Character, I told you the character is represented in inverted commas. Okay, and it has specific values. For example, I'll show you that this have a is equal to 97. इसकी एक वैल्यू है, ये इसकी वैल्यू है इस कैरेक्टर की 97. ये एक एस्काई फॉर्म में स्टोर होती है कंप्यूटर के अंदर. ठीक है,
तो ये हुआ आपका कैरेक्टर। फ्लोट, फ्लोट मीन्स डेसिमल वाले नंबर। सिंपल हिंदी में अगर आपको समझना हो ना फ्लोट, तो डेसिमल वाले जितने भी नंबर हैं वो आपके फ्लोट है। ओके। वॉइड, वॉइड मीन्स कुछ नहीं, नल, नथिंग। वॉइड मीन्स सिंपल नथिंग, कुछ नहीं है। ठीक है। अच्छा, मैंने आपको स्ट्रिंग जो स्ट्रिंग कैरेक्टर था उसके अंदर एक नल कैरेक्टर कराया था ना, अभी कराया, मैंने बताया कि एक नल कैरेक्टर साथ में जोड़ देगा, अपेंड कर देगा कंपाइलर उसको, मीन्स वो वहीं पे एग्जिट हो गया कैरेक्टर, इसके बाद नहीं है वो, दैट इज वॉइड। वो जो स्पेस थी ना वो वॉइड के लिए था, नल था वो, तो इसको वॉइड कहते हैं। ये प्रिमिटिव डेटा टाइप के अंदर आता है। अब डिराइव्ड डेटा टाइप क्या हुआ? डिराइव्ड मीन्स जो डिराइव किया गया हो। फॉर एग्जाम्पल एरे, एरे, एरे हो चुका, स्ट्रिंग हो गया, ये सब आपके डिराइव डेटा टाइप्स हैं। पॉइंटर हो गए, functions, these are your derived data types. Okay, user defined data types, if you talk about user defined, जो मैं बातें आपको बता रही हूँ आप प्लीज नोट कर लीजिए साथ साथ में, क्योंकि ये चीजें आपको एक थ्योरी के लिए याद रखनी चाहिए, एक इंफॉर्मेशन के लिए याद रखनी चाहिए। कोई अगर आपसे पूछ ही दे तो आपको एटलीस्ट आप बताने में कैपेबल रहेंगे। यूजर डिफाइंड में क्या आएगा? आपका स्ट्रक्चर, ये चीजें, ये स्ट्रक्चर वगैरह हम आगे जाके पढ़ेंगे, ये भी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनियन, ये सारी चीजें जो हैं आपके, ये सारे आपके यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स हैं। ठीक है, ओके। अब प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि हम प्रिमिटिव डेटा टाइप का भी प्रोग्राम भी बनाएंगे। प्रिमिटिव डेटा टाइप, इंटीजर बताया मैंने, कैरेक्टर, फ्लोट, वॉइड। एक टर्म आती है साइंड और अनसाइंड। ठीक है, एक टाइप आएगा क्योंकि साइंड और अनसाइंड। ठीक, तो साइंड क्या होता है? साइंड बाय नेम, मैं आपको चीजें बता रही हूँ कि यहाँ पे चीजें ना, जो डेफिनेशन किसी चीज की बन रही है ना, वो जैसा उसका नाम है वैसी उसकी डेफिनेशन है। ठीक है, साइंड मीन्स एक साइन दिया गया है उस पे, दैट मीन्स पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज। जो साइंड आपका डेटा टाइप है, साइंड टाइप ऑफ इंटीजर या फिर फ्लोट या फिर वॉइड, जो भी, वो आपको बताएगा पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज ऑफ दैट नंबर that start from positive value and negative values. For example, +4 values from +4 and -4. These are your signed values. So we can say that positive and negative numbers. These are signed type. Second one is unsigned. It means it stores numbers from 0 to up to some positive value. For example, a kind of whole number, 0 से लेके नेक्स्ट पॉजिटिव नंबर्स तक। यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स नहीं आते अनसाइंड में। ठीक है, तो यही चीजें छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं जो बतानी थी, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट थी आपको बताना। ठीक है, और ये साइंड और अनसाइंड जो टाइप्स हैं, वो हर एक डेटा टाइप में इसकी अलग अलग मेमोरी यूज होती है। फॉर एग्जांपल, इंटीजर में भी साइंड और अनसाइंड आएगी चीजें। ठीक है, ये इंटीजर में ये 2 बाइट मेमोरी लेगा। ठीक है, कैरेक्टर में वो 1 बाइट मेमोरी लेगा, ऐसे ऐसे। ओके, कहीं कहीं 4 बाइट लेता है, अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ द सिस्टम। टाइप ऑफ द सिस्टम पे डिपेंड करेगा ये चीजें। ठीक है, ओके। सो चलते हैं VS कोड के अंदर, और आपको एक डेटा टाइप यूज करके ये सारी चीजें जो मैंने कहा था, एरर आएगा, ये सब, वो सब यूज करके एक प्रोग्राम बनाते हैं। सो हियर वी आर, मैंने आपको फाइल बना लेंगे एक Qt 2.c से मैंने एक फाइल बनाई है। ओके, सो मैं अपना एक इंटेलिजेंस यूज करके ये कोड यहाँ रख लूंगी। ठीक है, hash include
स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच। ओके, अब मैं आपको पहले कांस्टेंट की प्रोग्राम बनाऊंगी। लेट्स सी व्हाट इज कांस्टेंट, और कांस्टेंट के अंदर कैसे एरर आता है, इसको यूज कैसे करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एक लिखा कॉन्स्ट इंट a, int a is equals to 3, लेट्स सपोज मैंने ये लिख दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट मैं लिख रही हूं int a is equals to 4, ठीक है। अब मैं आप प्रिंट कराऊंगी, ये बहुत ज़रूरी होता है ये डालना, ठीक है। वैल्यू ऑफ a, ओके इससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बताऊंगी इससे, ठीक है। अभी आप देखिएगा। सो यस, एक ये फाइल बनाई थी हमने, इसके अंदर ये वैल्यूज डाली। ओके, इसको मैं क्लियर कर दूँ पहले, सॉरी ओके, ठीक है। gcc enter gcc22.c file, then your this.e, let's see, okay, what value of a, मेरे पास तो यहाँ पे वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए थी a की, जो कि 3 मैंने दे दी है। तो ये a क्यों प्रिंट हुआ, ये क्या प्रिंट हो चुका, एक तरह का तो स्ट्रिंग है, ये क्यों प्रिंट हुआ। वो इसलिए क्योंकि मैंने a की जो वैल्यू दी है वो प्रिंट कहाँ होगा, वो स्टोर कहाँ हुआ, वो प्रिंट कैसे करेगा कंपाइलर उसको। तो उसके लिए क्या यूज करेंगे हम, उसके लिए यूज करेंगे हम स्पेसिफायर, फॉर्मेट स्पेसिफायर, जो कि ओके, जो कि कैसे यूज करते हैं, ऐसे फॉर्मेट स्पेसिफायर, इसको बड़ा कर लेते हैं। फॉर्मेट स्पेसिफायर से फॉर्मेट स्पेसिफायर इंटीजर के लिए अलग होगा और कैरेक्टर के लिए अलग होगा। हम इंटीजर के लिए यूज करेंगे %d, कैरेक्टर के लिए यूज करेंगे %c, और अनसाइंड वैल्यूज के लिए यूज करेंगे %u। ओके, तो ये फॉर्मेट स्पेसिफायर है। ये क्यों यूज करते हैं कि किस टाइप का वो डेटा टाइप है उसको प्रिंट करने के लिए। अब इसको मैं क्या करूंगी, अब यहाँ पे प्रिंट करा दूंगी। हम 5 की वैल्यू ऐसे भी, 3 की वैल्यू ऐसे भी प्रिंट करा सकते थे, बट मुझे आपको फॉर्मेट स्पेसिफायर के बारे में बताना था, इसलिए मैंने ऐसे किया। अब क्या करेंगे, द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू %d। अब देखो, और साथ में यहाँ पे आप a लिख देंगे, क्योंकि किसकी वैल्यू प्रिंट करानी है, a की ना, तो बस उसकी वैल्यू किसके फॉर्म में प्रिंट कराना है, इंटीजर के फॉर्म में। %d इज यूज्ड फॉर इंटीजर, साइंड इंटीजर, एंड किसकी वैल्यू प्रिंट करानी है, a की। अच्छा, मैंने आपको कहा था कुछ मैं शॉर्टकट बताऊंगी, तो इसको ये स्क्रीन को आप बड़ा भी कर सकते हैं। कैसे, कंट्रोल प्लस माउस को आप इसको बड़ा कीजिए, कंट्रोल को क्लिक करके माउस को आपको स्क्रॉल करना है। ओके, ये देखिए मेरी स्क्रीन बड़ी हो गई। अब मैं इसको रन करूंगी प्रोग्राम, अब देखना 3 ही प्रिंट होगा। ओके, मैंने सेव नहीं किया, सॉरी। आपको सेव करना, नहीं सेव करेंगे तो जो पहले प्रिंट कर रहे थे वही प्रिंट करेंगे।
ये गलती आप भी कर सकते हैं, मेरे से अभी तक हो रही है तो आप लोगों से भी होंगी गलतियाँ ये सब, तो आप इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। वैल्यू ऑफ ए इज 3, ये पूरा मेरा प्रिंट हो चुका जो भी इसके अंदर था, ठीक है। अब एक चीज़ करते हैं यहाँ पे, लेट्स से मैं एक वैल्यू इंट ए इक्वल्स टू, मैं लिखूँ यहाँ पे 4, ठीक है। अब इसको रन करते हैं, कंट्रोल प्लस एस से पहले सेव करें, इसको क्लियर कर देते हैं, जी सी सी 2. एरर, बाय एरर, क्यों एरर आया? कुछ गलत नहीं है यहाँ पे, फिर भी एरर क्यों आया? क्योंकि मैंने यहाँ पे लिख रखा है कांस्टेंट, कॉन्स्ट एक कीवर्ड दे रखा है मैंने, ये एक कीवर्ड है, जैसे इंट एक कीवर्ड हुआ, ऑल्दो, ठीक है, ये तो एक डेटा टाइप है लेकिन एक कीवर्ड है, एक उस डेटा टाइप का कीवर्ड है। अगर मैं यहाँ पे इंट की जगह इंटीजर लिखूंगी तो वो एक कीवर्ड नहीं है। देखिए जो भी चीज़ें ब्लू है, रेड है, वाइट है, ये पर्टिकुलर एक चीज़ को डिनोट कर रही है यहाँ पे, ठीक है। जो कीवर्ड है वो ब्लू में आएंगी, जैसे यहाँ पे इसके अंदर भी कीवर्ड लिखे हुए यहाँ पे, ये देखिए, इसको मैं अभी के लिए जाने देती हूँ। यहाँ पे भी एक कीवर्ड है इंट, ये जो चीज़ें हैं ना जो ब्लू में लिखी हुई है वो सारी कीवर्ड्स हैं। मैंने ऐसे किया, पहले कांस्टेंट बना दिया ए को, मतलब ए हमारा चेंज नहीं हो सकता थ्रू आउट द प्रोग्राम, और उसके बाद मैंने इसको चेंज कर दिया, यहाँ पे ए की वैल्यू मैंने चेंज कर दी, तो यहाँ पे इसलिए इसने एरर थ्रो किया, ठीक है। तो आप ऐसे नहीं कर सकते, अगर आप अभी प्रिंट करेंगे तो आपकी ए, मान लीजिए कांस्टेंट को हटा देते हैं, अब प्रिंट कीजिए, अब इसको कंट्रोल प्लस सी कीजिए, सॉरी कंट्रोल प्लस एस, अगर पहले क्लियर कर लेते हैं क्योंकि हमारा एरर आ चुका था, कंट्रोल प्लस एस से सेव कर दिया, ये क्या हो रहा, हो गया सर, जीसीसी जीसीसी ट्यूट 2.c, अब यहाँ पे रीडेफिनेशन ऑफ, ओके मैंने पहले इसकी वैल्यू डाल दी कुछ और, तो फिर ये तो आना था, तो इसको मैं कुछ और बना देती हूँ, बी डाल दूँगी, ये VS कोड के बारे में ये चीज़ अच्छा है, जो आप गलती करते हैं वो आपको बता देता है। तो यहाँ पे मैंने, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे गलती कर दी है tut.c, ऑब्वियसली ह्यूमन एरर, मेरी फाइल का नाम क्या है tut2.c, मैंने यहाँ पे लिखा tut.c, तो इसने मेरे को बता दिया नो फाइल और नो सच डायरेक्टरी, मीन्स ऐसा कोई भी फाइल नहीं है यहाँ पे, तो एरर कर दिया, एरर आ गया, इसने मुझे बता दिया, मुझे पता लग गया। अगर आप ऐसा कोई और कंपाइलर यूज़ करेंगे ना तो क्या पता वो आपको नहीं बताए, तो यही खासियत है VS कोड की कि आपको चीज़ें जो भी आप गलती करते हैं वो आपको बता देता है, ठीक है। एक नेक्स्ट टॉपिक मुझे पढ़ाना था आपका वेरिएबल्स, अच्छा ये कंट्रोल प्लस ए करेंगे तो सब सिलेक्ट हो जाता है, ठीक है, और इसको बैक स्पेस कर दीजिए तो एक बार में सब वेरिएबल्स। अब वेरिएबल्स क्या होता है? वेरिएबल्स वो होता है जो चेंज कर सकते हैं, जैसे कांस्टेंट हुआ कि चेंज नहीं कर सकते थ्रू आउट द प्रोग्राम, तो वेरिएबल्स क्या हम वो मानेंगे कि जो चेंज कर सकते हैं? ऐसा नहीं है इसकी डेफिनेशन। वेरिएबल्स एक आपकी एक तरह से कंटेनर है, कंटेनर है वेरिएबल एक तरह से, जो आपकी वैल्यूज को स्टोर करके रखेगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने वहाँ पे इंट ए डिक्लेयर किया था, तो इंट ए कहाँ स्टोर हुआ? मेमोरी के अंदर, ए नाम के वेरिएबल में। इंट उसका टाइप है, डेटा टाइप है, उसका सिंटेक्स ये होता है डेटा टाइप, ये उसका कुछ सिंटेक्स होता है, ये डेटा टाइप और ये वेरिएबल का नाम, ठीक है। इंट उसका डेटा टाइप है, उस
जो हमने नंबर या फिर कुछ भी एंटर कराया, नंबर एंटर कराया, ठीक है, जो नाम दिया उसको, जैसे मैंने लिखा था इंट ए, ठीक है, मैंने लिखा था इंट ए, तो जो डेटा टाइप है ये इंट हमारा, जो ए था वो वेरिएबल का नाम है, और जो अगर मैं ये इंट ए इज इक्वल्स टू 4 लिखती हूँ, तो जो 4 हमारा जो था ना नंबर, वो ए में स्टोर हो चुका, और ए क्या है, वेरिएबल, और इंट है उस वेरिएबल का टाइप। इसी तरह से कैर ए, कैर बी लिखते हैं, कैर बी इज इक्वल्स टू योर 5, लेट सपोज ये आपका 5 है, तो कैरेक्टर जो कैर है वो टाइप है वेरिएबल का, यानी टाइप है जो हमने यहाँ पे नंबर दी है, सॉरी डेटा टाइप दिया, उसका टाइप है कैरेक्टर। बी आपका स्टोरेज, नाम दिया गया स्टोरेज को, और जब आप इसको स्टोर कर लेंगे तो ये वेरिएबल बन जाएगा, और आपकी जो ये वैल्यू है कैरेक्टर, वो उस बी में स्टोर हो गई। तो बी एक तरह से कंटेनर हुआ कि हाँ वैल्यूज मुझ में डाल दो, उसको वेरिएबल्स कहते हैं, एक तरह से स्टोरेज को। VS कोड में जाके मैं आपको बताऊंगी। तो जो ए हुआ ना आपका, ये वेरिएबल है, वेरिएबल का नाम है, ठीक है, इसने 3 जो इसकी वैल्यू थी 3, ये वैल्यू थी ना, उसको अपने अंदर स्टोर कर दिया। जो ये जो मैं इक्वल टू डाल रही हूँ ना, ये इसका मतलब इक्वल टू नहीं होता कि इंट इसकी वैल्यू इतनी है, नहीं नहीं, इसका मतलब क्या होगा कि जो भी ये पार्ट था, जो 3 था, वो जाके ए में स्टोर हो चुका। ये जो वैल्यू है वो अपनी चीज़ें सारी, जो भी इसकी पहचान है 3, जो भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन है, वो सब इसमें डाल देगा, इसमें स्टोर कर देगा, ठीक है। इसका मतलब इक्वल ए की वैल्यू 3 के बराबर है, ये नहीं होता इसका मतलब, ये असाइनिंग ऑपरेटर होता है। ये मैं आपको ऑपरेटर्स के लेक्चर में बताऊंगी, वो एक असाइनिंग ऑपरेटर होता है, ठीक है। तो उसको हम ऐसे नहीं यूज़ करते कि इसकी वैल्यू इसके बराबर है, वो इक्वल टू यूज़ करने के लिए हम डालते हैं डबल इक्वल टू, सॉरी, ये इसका मतलब हुआ कि हाँ ए की वैल्यू 3 के बराबर। अगर मैं ये डालूँ ना, इंट ए इज इक्वल टू 3, सॉरी 3, इसका मतलब हुआ कि हाँ जो ये जो वैल्यू है ना, ये इसके बराबर है, ठीक है। इसका मतलब नहीं होता कि इसकी वैल्यू, इसका मतलब ये होता है जो इसने अपनी सारी प्रॉपर्टीज इसमें डाल दी, ओके। ठीक है, अब मैं एक सिंपल सा आपको एक और प्रोग्राम कराऊंगी। ये तो मैंने आपको भी प्रिंटिंग फॉर्मेट स्पेसिफायर के थ्रू आपको प्रिंट करना बताया। चलो एक प्रोग्राम करते हैं फन के लिए सही। बी की भी वैल्यूज प्रिंट कर सकते हैं ऐसे हम। इक्वल्स टू %d, ये डालना ज़रूरी है। अच्छा, जो ये चीज़ लिखी मैंने, इसके बिना ये लिख के देखते हैं क्या वैल्यू प्रिंट हो पाएगी बी की या नहीं, ठीक है। ये छोटी छोटी बात सिखा रही हूँ मैं आपको, लास्ट बाद में काम आएगी, बाद में आप कंफ्यूज नहीं रहोगे, ठीक है। वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल्स टू 3, वैल्यू ऑफ बी इज इक्वल्स टू 3, क्यों 3 की वैल्यू को मैंने बी को 4 डिक्लेयर किया है, तो मैंने यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 क्यों आ रहा है, कुछ गलत हुआ? वो इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने बता तो दिया कि हाँ मेरी वैल्यू प्रिंट करो, किस फॉर्म में, इंटीजर की फॉर्म में। %d मैंने किस लिए डाला, क्योंकि ये मेरा इंटीजर की फॉर्म में प्रिंट होगा। लेकिन मैंने ये नहीं बताया कि आपको वैल्यू प्रिंट किसकी करनी है, ये तो आपका वेरिएबल हुआ ना, इसको यहाँ पे बताएंगे तो ना कि हाँ मुझे बी की वैल्यू प्रिंट करनी है, तभी तो प्रिंट करेगा वो। अब Ctrl+S से सेव कीजिए, इसको दोबारा देखिए।
2.c. Okay. Okay, sorry. One mistake I did here. Value of a is equals to 3 and value of b is equals to 4. वैल्यूज आ गई। अगर आप चाहते हैं इसको नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करना, मतलब मैं चाहती हूँ मेरी वैल्यू नेक्स्ट लाइन में आए, मैं क्या करूँगी कि नेक्स्ट लाइन ऑपरेटर, ये भी एक तरह से ऑपरेटर है, ठीक है, सी में यूज़ करते हैं इसको, तो डाल दूँगी। अब देखिए नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो जाएगी। वैल्यू ऑफ 3 इज इक्वल्स टू, वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल्स टू 3, वैल्यू ऑफ 4, सॉरी वैल्यू ऑफ बी इज इक्वल्स टू 4, ये वैल्यूज प्रिंट हो गई, ठीक है। सो इन नेक्स्ट लेक्चर हम ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे, और उससे पहले मैं आपको एक एस्काई वैल्यू कैसे प्रिंट करते हैं उसका प्रोग्राम बताऊंगी, और एस्काई वैल्यूज बोलते किसे हैं उसके बारे में बताऊंगी। और इसी वीक नेक्स्ट वीडियो आएगी और उसमें मैं आपको ऑपरेटर्स के बारे में बताऊंगी, और एक बड़ा सिंपल सा एक एक्सरसाइज दूंगी आप लोगों को, वो आप सॉल्व करेंगे अपने अपने VS कोड में। फिर मैं उस एक्सरसाइज का आपको सोल्यूशन भी प्रोवाइड करूँगी। अगर कोई आपको अभी तक कोई कुछ चीज़ें आपको नहीं समझ में आई क्लियरली, तो आप कमेंट कर दीजिएगा कि आपको क्या चीज़ नहीं समझ में आई और किस चीज़ को आपको और इसको समझना चाहिए, ठीक है। तब तक के लिए वही सिंपल अपने स्किल्स को शार्प कीजिएगा एप्टीट्यूड की प्रॉब्लम सॉल्व करके, और ये जो वीडियोस हैं इनकी शॉर्ट नोट्स बनाइएगा, और ये जो कोडिंग का काम है इसको लिखना नहीं है, इसको कंपाइलर में जाके प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। जैसे अभी तक आप क्या क्या प्रैक्टिस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको लगा कि अभी तो मैंने बस दो वीडियोस ही देखी हैं, तो मैं क्या प्रैक्टिस करूँ। आप सिंपल ये जो प्रिंटिंग चीज़ें मैंने बताई है, जो भी मैंने थ्योरी में चीज़ें बताई, उसको वेरीफाई कीजिए तो मैंने जो बताया वो सही बताया कि नहीं, ठीक है। कैसे वेरीफाई करेंगे, जैसे मैंने कॉन्स्ट इंट लेके कोई कर दिया था, बाद में मैंने वैल्यू चेंज कर दी तो एरर आ गया, इसी तरह से आप भी कुछ कर सकते हैं। फिर जो मैंने एक सिंगल कैरेक्टर और स्ट्रिंग कैरेक्टर के बीच में डिफरेंस बताया था, वो आप चेक कर सकते हैं कि मैंने बताया है, तो कैसे पता आप उसको चेक कर सकते हैं। आप एडिशन का प्रोग्राम बना सकते हैं, आप सब्ट्रैक्शन का प्रोग्राम बना सकते हैं, ठीक है। सिंपल सिंपल चीज़ें देखकर आप चीज़ों को बना सकते हैं, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।